Hello students, lesson number 14, factorization, exercise 14.3, question number 5 we are solving. The first question is there, y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5, right? So here first of all we have to factorize this y square plus 7y plus 10. Very simple question. We have to take the factors of this 10 as a plus b and a into b format. Okay, so we have to take that one. So product should be 10 and addition should be 7. So here is the 5 and 2, right? So here y square plus 5y plus 2y plus 10. 5 to the 10 and 5 plus 2, it is 7. Okay, so y is the common, y plus 5 is remaining there among these two terms, and among these two next two terms 2 is common and y plus 5 is remaining, right? 2y and 2 5 is the 10 there. So here we get the two brackets, y plus 5 as a common bracket and another bracket y plus 2. So this is the factorized form of the dividend. Okay, now we are going to divide with the y plus 5. Now therefore come to our expression y square plus 7y plus 10 upon y plus 5. So we can write it y square plus 7y plus 10 as a y plus 5 and y plus 2 in factorized form, right? Divided by y plus 5. So this bracket get cancelled. The answer is y plus 2. So simple. You have to first take the factorized form of that given expression, and then you will easily get the denominator term in the numerator. You can easily divide that one. So this is the solution for first question. Okay, second question is m square minus 14m minus 32 divided by m plus 2. So first of all, we factorize this dividend. Okay, so here we need the 32. So, and we need the minus here 14 there. So 16 to the 32, right? So here we have to take the minus as a 16 and plus as a 2, because 16 plus minus 16 plus 2, it gives the minus 14 there, right? If you subtract that, and the product will be minus 32. Product will be minus 32 there, right? So here likewise factors we have to take. So here m square minus 16m plus 2m minus 32. This is the factorized form, that is equals to m bracket m minus 16 plus 2 outside the bracket and within a bracket m minus 16. So it is plus 2m and plus minus minus 2 16 the 32. So here m minus 16 is the common bracket of these two, and the next term will go into the bracket m plus 2. These are the factors of this expression. Now comes to the question. Here the m square minus 14m minus 32 divided by m plus 2. So that is equals to, we had taken the factor of this, ये factors यहाँ पे रखेंगे हम, m minus 16 and m plus 2, right? And divided by, this is m plus 2. So this m plus 2, this m plus 2 get cancelled. We get the answer m minus 16. So this is the answer. Next question is 5p square minus 25p plus 20 divided by p minus 1 there. Okay, so first of all we take the factors of this expression. Here we have to take the form of 5. अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, तो ये लास्ट टर्म जो इस पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, एक्चुअली इट इज द 5 multiplied by 20, that is a 5 to the 10 100, 55 50 to the 55, 25 the 100 के फैक्टर्स लेना हम कैसा लिया हमने, ये टर्म और यहाँ पे इसको कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट इसका प्रोडक्ट होगा, फिर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका आपको यहाँ पर फैक्टर करके उसका एडिशन 25 आना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, तो क्या होगा देखिए फिर किस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, इसका 25 आना चाहिए. तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे देखिए, 20 and 5. हमको कितना चाहिए, प्लस 100 चाहिए, तो -20 -5 क्या हो जाएगा यहाँ पर
25 is 100 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस होके -25 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 5p² -20p -5p +20। एक्चुअली इट इज नॉट द 20, इट इज 100। यहाँ मैं लिख ले रही हूँ समझने के लिए, 20 नहीं, एक्चुअली क्या है वो 100 है। तो 5p बाहर आएगा, ब्रैकेट में जाएगा p -20, सॉरी 5 4 द 24 आएगा यहाँ पर। सो ये देन -5 बाहर रहेगा यहाँ पर, p -4, सो 5 4 द 20 देयर। ओके, सो ये आ गया हमारा। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, सो 5p -5 ब्रैकेट p -4 देयर। ओके, सो ये हमारे फैक्टर्स आ। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या चाहिए डिनोमिनेटर में। हाँ चलिए हम पहले लिख लेते हैं इसको, फिर हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है यहाँ पे, 5p² -25p +20 अपॉन p -1 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या मिले हमको, 5p -5 एंड p -4 अपॉन p -1 हो रहा है, लेकिन p -1 तो नहीं है ऊपर, लेकिन हमको एडजस्ट करना है। देखिए अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन निकालती हूँ दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, p -1 रिमेनिंग रहेगा, और p -4 जैसे कि वैसा है, अपॉन p -1, राइट। सो p -1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट p -4, राइट। ये क्वेश्चन को और अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ले रही हूँ आपको नेक्स्ट यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द आंसर, आंसर शुड बी सेम देयर, यही आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, दूसरे मेथड से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। चलिए इसका ही दूसरा मेथड बता रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे 5 कॉमन कर दिए, p² -5 +4, राइट। देखो यहाँ से 5 कॉमन गया तो p² बचा, यहाँ से 5 कॉमन गया तो प्रोडक्ट है, तो 5 5 25 था तो 5 आ गया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 20 है तो हमने 5 कॉमन लिया तो 5 4 था तो 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 को वैसे ही रखिए, ब्रैकेट के फैक्टर्स लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा, हमको फैक्टर क्या चाहिए, 4 चाहिए, प्लस ये माइनस में क्या आएगा फिर यहाँ पर, अगर हमने ले रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 4 आना चाहिए, प्लस ये माइनस क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसका 5 होना चाहिए। फैक्टर्स क्या होंगे, 4 एंड 1, 4 1 जा 4 एंड 4 + 1 5। हम क्या करेंगे, -4 और -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, इज इक्वल टू -5 आएगा, और -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या हो जाएगा, वो +4 हो जाएगा। तो क्या करें हम यहाँ पर, फिर p², ये 5 कॉमन है बाहर, -4p -p +4, राइट। तो ये 5 कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, ये ब्रैकेट में आएगा अब हमारे पास p, इसका कॉमन निकला है तो p -4 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा और p -4 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 5 ब्रैकेट, ये p -4 कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में p -1 चला गया। ओके, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। नाउ कम टू द इक्वेशन, इट इज 5p² -25p +20 अपॉन what is it, p -1, so that is equals to, फैक्टर्स क्या है, 5 ब्रैकेट p -4 p -1 ब्रैकेट अपॉन p -1, so this bracket get cancelled, that is equals to 5 ब्रैकेट p -4, so this is the answer। आया सेम आंसर, दो अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4yz ब्रैकेट yz² +6z -16, इसके फैक्टर्स लेंगे हम पहले। 4yz कॉमन है, बाहर आ गया, z² +6z -16, तो हमको चाहिए -16 चाहिए यहाँ पे, इसके फैक्टर्स होना है, कितना आएगा यहाँ पे देखिए, अगर मैं 8 2 ज़ा 16 लेती हूँ और 8 - 2 इज 6, तो यहाँ पे +8 लेंगे, -2 लेंगे तो आ जाएगा हमारा +6 आ जाएगा, और 8 2 ज़ा 16 -16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आ गए, लीजिए यहाँ पर फिर z² +8z -2z -16, it is z, that is equals to 4yz as it is, outside the bracket z common, z +8 is remaining, -2 is common, z +8 is remaining there. Okay, 2z -2z minus plus -16 is there. Okay, now 4yz bracket कॉमन आ गया, z +8 एंड हेयर द z -2, राइट।
सो दैट इज दिस इज द फैक्टर्स. नाउ राइट आवर इक्वेशन लिखेंगे. हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे. चलिए, तो इसके ये लिख दिया मैंने यहाँ पर. अब इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास. वी गॉट द फैक्टर ये 4yz ब्रैकेट z प्लस 8 and z minus 2. Okay, this is this factor and divided by 2y bracket z plus 8. So क्या क्या कैंसिल होगा देखिए यहाँ पर. फिर this bracket get cancel, this bracket get cancel, this y get cancel, this y get cancel. 2 1s are 2 2s are 4. Okay, so what is remaining there. 2z bracket z minus 2, right. So this is the answer. Got it. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है 5pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. एक आइडेंटिटी थी हमारे पास. रिमेंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इन वन ब्रैकेट एंड a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट. लाइकवाइज इसके लेंगे हम यहाँ पर क्या आएंगे 5pq और इसका हो जाएगा p और q के फॉर्म में लेना है तो p प्लस q इन वन ब्रैकेट एंड p माइनस q इन अनदर ब्रैकेट. राइट. नाउ लेट मी राइट. So write the factors of this one. 5pq bracket p plus q and in another bracket p minus q divided by 2pq bracket p plus q there. Okay. So this p plus q get cancel, this q cancel, q p get cancel, p get cancel. क्या आ रहा है फिर 5/2 bracket p minus q. This is the answer. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन 12xy ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. इसका पहले फैक्टर्स लेते हैं हम. वही है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इन वन ब्रैकेट एंड a माइनस b इन वन अनदर ब्रैकेट. अब इसका क्या हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर है तो 9 मतलब 3x होल स्क्वायर हो जा रहा है माइनस 4y होल स्क्वायर. राइट. तो क्या आ जाना चाहिए फिर इसका 3x plus 4y in one bracket and 3x minus 4y in another bracket. Okay, so यहाँ पे ले लो मैं फिर 12xy ब्रैकेट क्या होगा 3x minus 4y sorry 3x plus 4y and in another bracket 3x minus 4y. 3 बोले तो 9 का 9 था ना यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है और 4 का स्क्वायर मतलब 16 होता है. तो ये पूरा एक टर्म का स्क्वायर हमको मिल जा रहा है. तो a स्क्वायर मतलब 3a मतलब 3x है, b मतलब 4y है यहाँ पर. ओके. सो नाउ राइट दैट इक्वेशन. व्हाट आर द टर्म 12xy. ओके, इसके फैक्टर्स लिखा मैंने डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट 3x plus 4y. So 3x plus 4y get cancelled, 3x plus 4y get cancelled here. Here x get cancelled, x get cancelled, y, 4 1s are 4 3s are. Okay. So क्या आ जा रहा है आंसर फिर यहाँ पर 3 bracket 3x minus 4y. This is the answer. Okay. That we had. Next question number. So this is the question. 39y square is the common. I am taking the 2 more common here. हाँ. 2 बाहर निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पे 25y square minus here the 2 4s and 2 9s 18 49 बच रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो देखिए अब इसके कैसा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं हम यहाँ पर. तो 20 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं हम. दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b. राइट. अब इसको लिखते हैं हम यहाँ पे. देखिए 25y स्क्वायर है तो क्या होगा 5y होल स्क्वायर माइनस ये 7 स्क्वायर हो जाएगा. तो क्या आएगा फिर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5y प्लस 7 इन वन ब्रैकेट एंड 5y माइनस 7 इन अनदर ब्रैकेट. ओके. सो व्हाट आर द फैक्टर्स कम हियर 39y स्क्वायर हमारा पहले कॉमन है. फिर हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला था. फिर इसका आएगा 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7 देर. ओके. नाउ राइट दैट. ये तो 39y स्क्वायर ब्रैकेट 550y स्क्वायर माइनस 98. इसके फैक्टर्स हमारे पास आए 39y स्क्वायर एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 हमने कॉमन निकाला था वैसे लिख रखा है मैंने उसको. एंड हियर 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाय क्या है इसका 26y स्क्वायर ब्रैकेट 5y
plus 7 there. Okay, so let me cancel that. 5y plus 7, 5y plus 7 get cancelled. Y square and y square get cancelled. 13 2s are 26, 13 3s are 39, 2 1s are 2 1s are there. Okay, so what is the answer then? 3 is remaining here and 5y minus 7. This is the answer. So simple question. Okay, so do the practice more. If you do the practice more, you can betterly understand and you can easily solve, and fastly you can solve these sums there. Okay, so this is the solution for question number 4 of 14.